Assalamualaikum, dear students. Today we are going to start our lesson number 2 of subject science. Okay? Lesson number 2, and the name of the topic is atoms, molecules, mixtures and compounds. Okay? This is our lesson number 2. Okay, now open your book which you have in your course. Okay, open page number 42. Page number 42. The name of the topic is atoms, molecules, mixtures and compounds. Okay, first of all I will explain you what are atoms. What are atoms? Everything around us, जितनी भी चीज़ें हैं हमारे आसपास, इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. वो किससे बनी है? इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी है. ऑल ऑफ विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और उन सब की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग हैं. दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. These tiny particles are called atoms. Okay, और उन tiny particles को क्या कहते हैं? हम atoms कहते हैं. Okay, I'll repeat. Everything around us is made up of tiny particles, all of which have different properties. These tiny particles are called atoms. Okay, now come to elements. Now come to elements. Okay, what are elements? A material that is made up of only one type of atom. वो मटीरियल जो कि बना हो, मेड अप ऑफ यानी कि बना हो ओनली वन टाइप ऑफ मेटल, जिसमें सिर्फ एक टाइप के एटम हो. वन टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एन एलिमेंट. तो उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं. ईच एलिमेंट कंटेन्स, हर जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट है कंटेन्स only one type of atom. Okay, each element contains only one type of atom. Do you know, students, scientists have discovered how many different kinds of elements? Yes, very good. Scientists have discovered 117 different types of elements. Okay, here are the names of some elements and their symbols. Elements and their symbols. Okay, hydrogen H, helium He, lithium Li, neon Ne, boron B, carbon C, nitrogen N, oxygen O. Now magnesium Mg, aluminium Al, phosphorus P, sulfur S, chlorine Cl, argon Ar, potassium K, calcium Ca. Now copper Cu. The symbols of these elements: zinc Zn, lead Pb, gold Au, silver Ag, sodium Na, nickel Ni, and the last one iron Fe. Okay, these are the name of some elements and their symbols. These are the elements and these are their symbols. You have to read it thoroughly and learn it. Okay, now we read metals and non-metals. We can divide the elements into those which are metals, such as कौन कौन से हैं इसमें? As you see, the metals include magnesium, aluminium, copper, zinc, lead, gold, silver. Okay, they all are metals. Okay, and next one, the non-metals include hydrogen, helium, carbon, nitrogen, argon, chlorine, sulfur, oxygen. Okay, they are all non-metals. Okay, these are all metals and these are non-metals.
The main difference between metals and non-metals are listed in the table. These are the difference between metals and non-metals. Number 1, metals क्या है? First of all we read about metals. Metals are shiny, बहुत shiny होते हैं, especially when freshly cut. Are hard and strong, okay, hard होते हैं और strong होते हैं. Are dense, heavy for their use, okay, heavy होते हैं. Are good conductor of heat and electricity. बहुत अच्छा तरीके से उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, कंडक्टर हैं. दीज आर हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, सो दे आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट फॉर मर्करी विच इज़ लिक्विड. कैन बी ड्रोन इनटू अ वायर एंड हैमर्ड इनटू शेप. ओके. आर sonorous, they are sonorous, metals are sonorous, make a ringing sound when you tap them. When you tap the metal, they makes a ringing sound, so they are called sonorous. A few metals, example iron, cobalt and nickel, are magnetic. They are magnetic, but most are non-magnetic. Now come to non-metals. Okay, most non-metals are dull. They are dull because they do not reflect light very well. Number 2, most non-metals are weak or brittle. Weak होते हैं. हैव लो डेंसिटीज़, इनकी डेंसिटीज़ कम होती हैं. आर मोस्टली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके. नाउ हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. दिस मीन्स दे मेल्ट एंड बॉयल ईजिली. इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है. ओके. इफ़ दे आर सॉलिड्स, दे आर यूजुअली वीक एंड ब्रिटल वाइल मैनी आर गैसेस. Non-metals are not sonorous. As you read, metals are sonorous, but non-metals are not sonorous. And all non-metals are non-magnetic. जितने भी non-metals हैं वो क्या हैं? Non-magnetic हैं. Okay. Here are the uses of some well-known or common elements. Okay. Number 1, किसके uses हैं? Copper के पढ़ेंगे हम. Because it conducts electricity well. इसमें इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कॉपर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वायर्स एंड केबल्स, जिससे केबल्स एंड वायर्स बनाए जाते हैं. इट ऑल्सो कंडक्ट हीट वेल एंड इज़ यूज्ड फॉर बॉयलर्स. बॉयलर्स में यूज़ होता है. कुकिंग पॉट्स एंड पेन्स. मैनी मॉडर्न कॉइन्स कंटेन अ लॉट ऑफ कॉपर. कॉइन्स में भी होता है बिकॉज कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड ऑल्सो बेंड्स फेयरली ईजिली. कॉपर इज़ यूज्ड फॉर वाटर पाइप्स एंड टैंक्स. ओके. दे आर यूज्ड इन वायर्स, केबल्स, कॉइन्स एक्सेट्रा. तो दीज आर द यूजेस ऑफ कॉपर. एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम इज़ अ वेरी लाइट मेटल. बहुत लाइट होता है एंड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट्स. एयरक्राफ्ट्स बनाने के लिए, ट्रेन्स एंड सम कार पार्ट्स, कुछ गाड़ियों के पार्ट्स भी बनाने के लिए, एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स ऑल्सो. बिकॉज इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बिकॉज इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट इज़ यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर लाइन्स. ओके. एल्यूमिनियम डज नॉट रस्ट. इस पर रस्ट नहीं होता, यानी कि जंग नहीं लगता. एंड इट इज़ यूजफुल फॉर रैपिंग फूड. फूड रैप करने के लिए भी यूज़ करते हैं. एंड चॉकलेट बार्स. एंड मेकिंग ड्रिंक कैंस एंड विंडो फ्रेम्स. जैसे कि आपको पता है कि इससे आपके पेप्सी के वगैरह के जो ड्रिंक के फ्रिजी ड्रिंक के कैंस भी बनते हैं. चॉकलेट पे भी रैप्ड होता है, फूड पे भी रैप्ड होता है, विंडो के फ्रेम्स भी बनते हैं बिकॉज इट इज़ रस्ट प्रूफ. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर सिल्वरिंग मिरर्स. ओके. तो दीज आर द यूजेज ऑफ एल्यूमिनियम. ओके. नाउ गोल्ड. बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी एंड स्केर्सिटी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. गोल्ड इज़ यूज्ड फॉर ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी एंड सेरेमोनियल ऑब्जेक्ट्स. ज्वेलरी के लिए यूज़ करते हैं. गोल्ड इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट इज़ ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज़ यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज टेलीफोन्स एंड कंप्यूटर्स. ओके. गोल्ड इज़ ऑल्सो यूज इन डेंटिस्ट्री एंड मेडिसिन्स. जैसे आपको पता है गोल्ड के टीथ बनाए जाते हैं एंड मेडिसिन. एंड एज कैटलिस्ट इन सर्टेन केमिकल रिएक्शन. सो दीज आर द यूजेज ऑफ गोल्ड. लेड. लेड इज़ अ हैवी मेटल. एक हैवी मेटल है. इट इज़ यूज फॉर वेट्स, इज़ अ पार्ट ऑफ सोल्डर एंड प्यूटर एंड इज़ यूज्ड एज अ रूफिंग मटीरियल. ओके. लेड इज़ ऑल्सो यूज्ड इन बैटरीज. कहाँ पे यूज़ किया जाता है इसे? एज यू सी these are used in, lead is used in batteries and in nuclear power plants to shield workers from radiations. बैटरीज में भी यूज़ किया जाता है और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे भी एज अ शील्ड के तरीके से यूज़ किया जाता है ताकि वर्कर्स को जो है वो सेफ रखा जाए डेंजरस रेडिएशन से. ओके. नाउ कम टू सल्फर.
सल्फर इज़ अ येलो नॉन मेटल, येलो कलर का होता है, नॉन मेटल, विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग, क्या चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होता है? गन पाउडर, फायरवर्क्स, फर्टिलाइजर्स एंड सर्टेन मेडिसिन्स, फंजिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। ओके, गन पाउडर बनाते हैं इससे, फायरवर्क्स बनाते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाते हैं एंड कुछ मेडिसिन भी बनाते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू हार्डन द रबर यूज इन मेकिंग कार टायर्स, और कार के जो टायर्स को हार्ड करने के लिए उसके रबर को, इस सल्फ़र को यूज़ किया जाता है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ सल्फ़र। ओके, कार्बन, कार्बन इज़ अ नॉन मेटल है विच अकर्स इन सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन ऑल लिविंग टिश्यूज़, ओके, एंड इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन पेंसिल लेड्स, पेंसिल की जो हमारी ये लेड होती है, ये जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं, इसमें भी, ये भी किससे बनती है? कार्बन से, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, एंड इन ज्वेलरी एंड फॉर कटिंग, ग्रिलिंग, ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग इन द फॉर्म ऑफ डायमंड्स, इसमें भी कार्बन को यूज़ किया जाता है। नाउ कम टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अनदर गैस, ये भी एक टाइप का गैस है, इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोटीन्स, in the manufacture of fertilizers and as a liquid for cooling such things as blood and reproductive cells. ठीक है, these are nitrogen. Is a gas and is used for formation of plant and animal proteins. Okay, और इससे जो है in the manufacture of fertilizers भी बनाए जाते हैं, as a liquid for यूज़ किया जाता है for cooling such things, और किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। नाउ कम टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस, ये भी एक गैस है, इज़ यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल, ओके, रॉकेट के फ्यूल के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर मेकिंग मार्जरीन एंड अमोनिया, मार्जरीन बनाए जाते हैं और अमोनिया बनाया जाता है। एंड फॉर प्रोसेसिंग क्रूड ऑयल एंड ट्रीटिंग मेटल्स, तो हाइड्रोजन इन तमाम काम में यूज़ होता है। एंड the last one is oxygen, the most important, oxygen. Oxygen gas is used for all forms of burning, जलाने के लिए, और combustion, and in oxyacetylene flames for cutting and welding metals, metals को cut करने के लिए, weld करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। It is also used as a rocket fuel and in the production of steel, plastics and textiles, इन तमाम चीज़ों में यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन इज़ यूज इन रेस्पिरेशन, और सबसे इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने में इस्तेमाल होता है बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट्स ऑल्सो हेल्प पीपल टू ब्रीथ, प्लांट्स और एनिमल्स भी इसके ज़रिए रेस्पायर करते हैं, और इट ऑल्सो हेल्प पीपल, इंसान जो हैं, टू ब्रीथ इन फायर्स, इन हॉस्पिटल्स, इन स्पेस क्राफ्ट एंड व्हेन ड्राइविंग अंडर वाटर, और इंसान भी, जो ह्यूमन भी जो हैं, लोगों भी वो इसे यूज़ करते हैं। कहाँ पे ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं? फायर जब हो, या कहीं हॉस्पिटल्स में हों, या स्पेस पे जब जाते हैं तो ऑक्सीजन साथ लेके जाते हैं। और व्हेन ड्राइविंग, अगर ड्राइविंग अंडर वाटर, जब पानी के स्विमिंग करते हैं तो भी अपना ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करते हैं, और ताकि उससे ईज़िली सांस ले सकें। नाउ we read about compounds. What are compounds? Okay, definition of compound is atoms can join together, जब atoms join होते हैं, mix होते हैं, to produce a new substance, और जब वो mix up होके एक नया substance produce करते हैं, which is quite different from the elements forming it, और जो कि बिल्कुल different होता है, जो कि from the elements forming it से, okay, this new substance is called compound, और ये जो new substance develop हुआ है, इसे हम कहते हैं compound, okay. Again I'll repeat, atoms can join together to produce a new substance which is quite different from the elements, जो कि elements से बिल्कुल different होता है forming it. This new substance is called a compound. For example, water is a compound. Water is a compound of, किसका compound है, क्या क्या है इसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. This is the example of compound. Water is a compound of hydrogen and oxygen. And now, what are molecules? So, a molecule is made up of two or more atoms. Molecule की definition क्या है? It is made up of two or more atoms, but they can be two or more atoms
ऑफ द सेम काइंड, हो सकता है कि उसमें एक ही तरह के दो हों, और टू और मोर डिफरेंट आइटम्स, और हो सकता है अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स हों। एंड मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इन बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस में एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं, बोथ एलिमेंट्स में भी और कंपाउंड में भी। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल। As you see in this picture, molecules of oxygen gas, oxygen atom, molecules of water, okay, molecule of carbon dioxide gas, hydrogen atom, okay, these are, and molecule of methane gas, carbon atom. So these are the some examples of molecules of different types of gases. Now what are mixtures? A mixture contains two or more elements. What is the definition of mixture? A mixture contains two or more elements or compounds. मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं that are together in a way that does not involve a chemical reaction. Okay? Again, I'll repeat, a mixture contains two or more elements or compounds that are mixed together, जो कि मिक्स हो जाते हैं in a way, इस तरह से, that does not involve a chemical reaction, जिसमें कोई chemical reaction involve नहीं होता. Examples क्या हैं मिक्सचर्स की? बहुत सारी examples हैं. Some of the examples are air, ink, milk, petrol, vinegar, baking powder.
Okay. Separating mixtures. There are several techniques that can be used to separate mixtures. अलग अलग तरीके हैं, टेक्निक्स हैं ताकि जिनसे मिक्सचर्स को सेपरेट किया जाए. ओके. नंबर 1, फिल्ट्रेशन. फर्स्ट जो मेथड है वो है फिल्ट्रेशन. इफ़ यू हैव अ मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड एंड अ सॉलिड, अगर आपके पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें लिक्विड भी है और सॉलिड भी है, दैट हैज़ नॉट डिज़ोल्व, और जो डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर और सैंड है या वाटर एंड टी है. ओके. दे कैन नॉट डिज़ोल्व. यू कैन सेपरेट द लिक्विड एंड सॉलिड बाय फिल्टरिंग. तो हम उस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. ओके. ड्यूरिंग फिल्टरिंग द मिक्सचर इज पोर्ड इनटू अ फिल्टर पेपर. मिक्सचर को डाला जाता है, इसमें एक फ़िल्टर पेपर है उसमें डाला जाता है. द फिल्टर पेपर इज़ फुल ऑफ टाइनी होल्स. इस फिल्टर पेपर में छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं. एंड एक्ट्स लाइक अ सीव. ओके. जो कि एक सीव का काम करते हैं, छन्नी का. द लार्ज पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड आर टू लार्ज टू गो थ्रू द टाइनी होल्स एंड आर लेफ्ट इन द फिल्टर पेपर एज अ रेजिड्यू. फिर जो हम मिक्सचर डालते हैं इसमें, तो जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं जो उनके होल से लार्जर होते हैं, तो वो नीचे पास डाउन नहीं हो पाते और वो फिल्टर पेपर में रह जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं रेजिड्यू. क्या कहते हैं? रेजिड्यू. द स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड पास थ्रू एंड आर कलेक्टेड एज द फिल्ट्रेट. और जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो पास हो जाते हैं और कलेक्टेड एज अ फिल्ट्रेट, और जो नीचे आ जाते हैं इसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट. इन दिस वे द इनसॉल्युबल सॉलिड एंड द लिक्विड आर सेपरेटेड. और इसी तरह हम इनसॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड से सेपरेट कर सकते हैं थ्रू द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन. Now evaporation. Number 2, evaporation. You cannot separate a dissolved solid. लेकिन अब जो डिज़ोल्व सॉलिड्स हैं जो पानी में हल हो गए हैं, उन्हें कैसे सॉल्व नहीं हम सेपरेट किस तरह करेंगे? सच एज सॉल्ट फ्रॉम अ लिक्विड. अगर पानी में नमक हो तो उसे कैसे करेंगे? सच एज वाटर बाय फिल्ट्रेशन, बट यू कैन सेपरेट द सॉल्ट बाय एवेपोरेशन. अगर पानी जो है नमक वाला है और डिज़ोल्व है, ऑब्वियसली सॉल्ट इज डिज़ोल्व इन वाटर, तो हम उसे फिल्ट्रेशन के मेथड से जो है वो अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते. तो इसी के लिए बट यू कैन सेपरेट बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन. इसके लिए हमें कौन सा यूज़ करना पड़ेगा मेथड? इवेपोरेशन. द सॉल्यूशन कंटेनिंग द डिज़ोल्व सॉल्ट, द सॉल्यूट इज पोर्ड इनटू एन इवेपोरेटिंग बेसिन एंड हीट जेंटली. किसी बर्तन में उसको हम डालेंगे और उसको अच्छी तरीके से गर्म करेंगे. इवेंचुअली ऑल द लिक्विड द सॉल्वेंट, जितना भी लिक्विड है जो सॉल्वेंट है, इवेपोरेट हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, लीविंग द सॉल्ट बिहाइंड. और जो सॉल्ट है वो बर्तन में रह जाएगा. द सॉल्ट फॉर्म्स क्रिस्टल इन द बेसिन, और उसके क्रिस्टल्स बन के उसमें रह जाएंगे. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. ओके. Distillation. Distillation is a process used to separate the solvent from a solution. Okay. If for example you had some sea water, अगर आपके पास कुछ समंदर का पानी है and wanted to obtain pure water from it, और आप चाहते हैं कि इसमें से आप उसको प्योर वाटर में कन्वर्ट कर दें, you would need to heat the water until it boils. तो आपको क्या करना होगा? उसे बहुत ज़्यादा बॉईल करना होगा, गर्म करना होगा ताकि वो बॉईल हो जाए. ना उसको हीटअप करेंगे कि वो बॉईल हो जाए. यू वुड देन कूल, फिर उसे ठंडा करेंगे, एंड कंडेंस द स्टीम और वाटर वेपर्स प्रोड्यूस. द स्टीम और वाटर वेपर्स टर्न बैक इनटू लिक्विड वाटर विच इज़ एब्सोल्युटली प्योर. और फिर वो स्टीम और जो वाटर वेपर्स हैं टर्न बैक वापस किस में टर्न हो जाएंगे? लिक्विड में, वाटर में, विच इज़ एब्सोल्युटली प्योर, जो कि बिल्कुल प्योर होगा. इट इज़ कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर, और इसे हम क्या कहेंगे? डिस्टिल्ड वाटर. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन एंड द वाटर इज़ कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर. ओके. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज sublimation. What is this? Sublimation. A few solid substances go straight to the gas stage when they are heated. Okay, they go to the gas stage when we heat them, missing out the usual liquid stage. और अपनी जो उनकी liquid stage है उसको चेंज कर हो जाते हैं. The best example is solid carbon dioxide, the so called dry ice, जिसे हम क्या कहते हैं? dry ice कहते हैं. This produced
कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज सून एज इट इज़ वार्म, जैसे ही वो गर्म होगी, वार्म होगी, इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. A few other substances which do melt when they are heated still evaporate quite rapidly if they are kept well below their melting points. Okay. Iodine and sulfur are examples of the kinds of sublimation. Iodine and sulfur are the best examples of the sublimation. As you see in the picture, iodine vapors cool and forms pure crystal. Here, this is the funnel. Then heat proof dish. Okay, impure iodine और यहाँ से heat देंगे. The apparatus used for purify iodine. This apparatus is used to purify iodine by the process of sublimation.